کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اب یہ مقابلہ بہت اگلے سٹیج تک پہنچ چکا ہے، پری کوارٹر فائنل، اور وہ بھی صرف 2 باقی رہ گئے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ کشمیر، جی ہاں مظفر آباد سے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ کشمیر کی ٹیم کا آج مقابلہ ہے پنجاب کے بڑے مشہور شہر فیصل آباد سے۔ یہ دونوں ٹیمیں انشاءاللہ آج منچ پر ہوں گی، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے، فیصل آباد یا مظفر آباد۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ میری دائیں طرف فیصل آباد والے ہیں، بائیں طرف مظفر آباد والے موجود ہیں، کشمیر سے آئے ہیں جناب، بہت ٹھنڈے علاقے سے آئے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جذبات کتنے گرم لائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کریں، کل کراچی میں ایک آؤٹ ڈور مقابلہ ہوا، ایک زبردست وینیو پر مقابلہ ہوا، ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ کیسا رہا اور نتیجہ کیا رہا؟ کراچی اور لاہور کے درمیان مقابلہ تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Knowledge is light، العلم نور، العلم نور۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش الحمدللہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ایک اور پری کوارٹر فائنل ہے، مگر آج یہ ہمارا مقابلہ ہمارے مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ کراچی کے علاقے فریئر ہال کے اندر، جو کینٹ اسٹیشن کے پاس ایک خوبصورت مقام ہے، وہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ Knowledge is light، العلم نور، العلم نور۔ اگر کوئی مجبوری میں نماز توڑ بیٹھے تو اس پر کیا کفارہ ہے؟ بغیر مجبوری کے نماز توڑنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی مجبوری میں نماز توڑ بیٹھے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن نماز لوٹانا واجب ہوگا، چاہے نفلی ہو یا فرض نماز ہو۔ باپ درست دے دیا ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جواب درست دے دیا ہے۔ ابے منو بھائی انتہا ہوتی ہے، صبح سے کتنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اپنا اندھا تو یہی چلتا ہے یار، اور اپنے پپو بھائی بھی کم تھوڑی ہے، ایسی تھوڑی تھی ترقی کر لی، دودھ میں پانی ملا کے ترقی کی ہے۔ ارے شرافت بھائی، پیسے بنانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ابے چل چل بکواس بند کر سمجھ آئی۔ ارے شرافت بھائی تھوڑی شرافت دکھا اور میرے پرانے ادھار کے پیسے واپس کر دو۔ کون سے پیسے بھائی؟ ارے ابھی بتاتا ہوں کون سے پیسے، سارا حساب لکھ کر رکھا ہے میں نے۔ یہ چاول خراب دیے، کہا بھی تھا اچھے والے دینا، یہ واپسی لو، مجھے نہیں چاہیے۔ پرچون والے بھائی، کیا کل قیامت میں آپ کو حساب نہیں دینا؟ کیا آپ کو اس ملازم پر ترس نہیں آتا؟ صرف ان کے بچوں کا تو خیال کر لیتے۔ کیا بازار ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح ایک با ایمان اور با کردار قوم بن سکتے ہیں؟ ہم غور کریں اپنے اپنے طور پر، کیا ہم چوری سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے، حرام روزی سے باز آ رہے ہیں؟ ہم سمجھتے پیسہ آنا چاہیے چاہے کہیں سے آئے، پھر ہم کہتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو رو کے اب بیل لاہور والوں نے بجائی ہے، صحیح جواب انہیں آگے بڑھا دے گا۔ دوسری لائن کا پہلا لفظ سنا ہے تو رو کے، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا۔ رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، جواب درست دے دیا۔ اللہ اللہ، اب پھر لاہور والے آگے ہیں، 1 نمبر کا فرق ہے۔ ناظرین اب مزیدار بات یہ ہے، میرے پاس ایک سوال ہے اور ایک شعر ہے،
किसी दूसरे को अपना बेटा, अब बैल लाहौर वालों ने बजा दी है। किसी दूसरे को अपना बेटा या बेटी अल्लाह की रजा के लिए गोद दे सकते हैं, और क्या डॉक्यूमेंट या शादी कार्ड की जगह उस गोद लेने वाले का नाम लिखा जा सकता है? इसका जवाब यह है कि किसी दूसरे को अपना बेटा गोद देना जायज़ है, और अगर गोद देना जायज़ है और गोद लेने वाला गोद ले भी सकता है, लेकिन वो उसका बाप नहीं बनेगा। हकीकी बाप वो ये होगा जिसने उसे पैदा किया, जो जिससे वो पैदा हुआ। लेकिन और डॉक्यूमेंट या शादी कार्ड वगैरह में गोद लेने वाले का नाम नहीं लिख सकते, ये हराम है, क्योंकि असल बाप इसका वही है, और ये इसको तो सिर्फ पालने के लिए दिया है। आपने सवाल के बाद मुझसे ये पूछा नहीं कि सवाल ये था कि नहीं। आपने सवाल भी बयान कर दिया, पूरा जवाब भी बयान कर दिया। पहले ये तो पूछते कि जो सवाल में हम पूछना चाहते थे वो था या नहीं था, मगर इस सवाल का जवाब मैं अगले सवाल के बाद बताऊंगा। अब चलते हैं नादरीन, आपको फिर तर्ज सुनाते हैं। ये आखिरी सवाल है। फिर बैल बजाई कराची वालों ने। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह कलाम अर्श हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा मेरे पास आके खड़े हो जाए, फैसला हो जाएगा। इससे पहले वाला जवाब अगर तो लाहौर वालों ने ठीक दिया था तो लाहौर की टीम आगे बढ़ जाएगी, और अगर कराची लाहौर वालों ने गलत दिया तो कराची पहले ही 1 नंबर से आगे है। नाजरीन, जो सवाल किया गया था किसी दूसरे को अपना बेटा या बेटी देने के हवाले से, बात यह है कि लाहौर वालों ने जवाब दुरुस्त दिया और आज का मुकाबला लाहौर वाले जीत गए हैं। Knowledge is light, al-ilmu nur, al-ilmu nur. बड़ा कमाल का मुकाबला कराची और लाहौर के दरमियान हुआ। शहर कराची में हुआ। कराची की टीम मेज़बान भी थी, हज़ारों लोग उस वक्त मजमे में मौजूद थे, मगर बिल्कुल आखिर में जाकर लाहौर वाले आगे निकल गए। इसी का नाम जनाब ज़हनी आजमाइश है। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है जनाब, की शम्मा। इल्म नूर है, इश्क के बोल, अजायबाते कुरान, मुकम्मल कीजिए खानदानी रिश्ते, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, जोश के साथ मगर होश से। आइए नाजरीन, पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। इससे पहले कि हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, आइए दोनों टीमों से उनका तारुफ भी हासिल करते हैं। मेरी दाईं तरफ फैसलाबाद के इस्लामी भाई हैं, अपना नाम भी बताएं और अपना काम भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली रज़ा तारी बिन अली असगर कासम है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना खुड़ियांवाला फैसलाबाद का 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गिलमान रज़ा तारी है और मैं जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मदीना खुड़ियांवाला फैसलाबाद में दर्जा सादसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। गिलमान, आप पिछली बार भी गालिबन ज़हनी आजमाइश में थे, फैसलाबाद की टीम में थे, कहाँ तक गए? माशाअल्लाह, क्वार्टर फाइनल तक गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम हुआ, अभी मदीना शरीफ की हाज़िरी हुई। क्या बात है। मदीना भी देखा है, ज़हनी आजमाइश में शिरकत की और सरकार ने मदीना दिखाया और गिलमान फिर आ गए माशाअल्लाह। जी, तीसरे, अल्लाह बार बार हाज़िरी अता फरमाए। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिद अत्तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मदीना मदीना टाउन फैसलाबाद में 6th ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। चलें जनाब, फैसलाबाद वालों से तारुफ हो गया, अब बारी मुजफ्फराबाद वालों की है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसम अशरफ बिन मोहम्मद अशरफ है। मैं जामिअतुल मदीना आज़म नगर लाला मुसा में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ शहबाज अत्तारी बिन मोहम्मद हुसैन अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फ़िज़ान शाह जमाल पंजबीर इचरा में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फराज अत्तारी बिन मोहम्मद अफ़ाक अत्तारी और मैं मुजफ्फराबाद की टीम से हूँ। चलें जनाब, तीनों इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपना तारुफ भी करवा दिया। आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं। पहला राउंड इल्म नूर है और उसका पहला सवाल करेंगे फैसलाबाद वालों से। क्या सैयदों पर भी ज़कात फ़र्ज है? अल्लाह की रहमत से उजड़े घर से बसाते हैं, बसाते हैं की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جی ہاں، سیدوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ کی شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو۔ سید کے اوپر بھی صاحب وہ نصاب ہیں اور زکوٰۃ کی شرائط باقی پائی جاتی ہیں تو ان سید صاحب کو بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا سید زکوٰۃ لے نہیں سکتے، مگر زکوٰۃ اگر ان پر واجب ہوگی تو انہیں نکالنا ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ متقین کی صحبت کا کیا فائدہ ہے؟ مظفر آباد والوں سے سوال ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ سبحان اللہ، متقین کی صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ دین کا علمی فیضان یہاں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ متقین کی صحبت اختیار کرو کہ یہ تمہیں دنیا داروں سے کم بوجھ ڈالیں گے اور ان سے زیادہ مدد کریں گے۔ جی، متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ یہ تم پر دنیا والوں سے بوجھ کم ڈالیں گے مگر دنیا والوں سے زیادہ مدد کریں گے۔ تو اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں متقی دوست مل جائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت نہیں بلکہ مباح ہے۔ جی جناب، یہ سنت نہیں ہے، مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے؟ نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے، روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے اور مسجد قیامت تک ہی مسجد رہتی ہے، اور جس شخص نے مسجد بنائی اسے قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اس مسجد بنانے والے شخص کو ثواب کی حد کے بارے میں معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ اسے کتنا ثواب ملے گا۔ جناب اس لیے مخیر حضرات کو چاہیے کہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک مسجد ضرور بنائیں۔ کیا بات ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ دنیا میں تو ہمارے گھر بن گئے، کیوں نہ جنت کے گھر بھی بنائیں؟ تو یا تو مسجد پوری بنا دیں، پوری نہیں بنا سکتے تو حصہ ضرور ملاتے رہیں میرے رب کی رحمت سے۔ جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ دعوت اسلامی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہی مجلس خدام المساجد والمدارس المدینہ ہے، جس میں مساجد بنائی جاتی ہیں، مدارس بنائے جاتے ہیں۔ رابطہ کیجئے اپنے مرحومین کے لیے، خود اپنے لیے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانا چاہیں تو ضرور بنائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بھتیجی سے نکاح جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نہیں، بھتیجے سے نکاح جائز نہیں۔ بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسٹوڈیو والے لگتا ہے کچھ کل رات شرکت کر کے آج تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، ذرا مل کر بآواز بلند کیا کہیں گے؟ اچھا، رات میں کنگھی کرنا اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ برباد کرتے ہیں شیطان کے منصوبے، یہ برباد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے وقت کنگھی کرنا اور ناخن کاٹنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی برا نہیں ہے۔ رات میں کنگھی کرنا اور ناخن کاٹنا جائز ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ابتدائی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کو کہاں رکھا گیا تھا؟ خیر خواہی امت کے بیڑے اٹھاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا۔ پھر جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا۔ کیا بات ہے، بڑی یونیک معلومات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی ہے اس کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا۔ مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد جب یہ انسانی صورت اسے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو پھر اس مٹی کو جنت میں لے جایا گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کے حق میں خاص دعا کون سی ہے؟ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش سے آیا ہے، علم کی شمع۔ ہر ایک نبی کی امت کے لیے ایک دعا خاص ہوتی ہے جو مقبول ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میں نے اپنی مقبول دعا جو ہے اپنی امت کی شفاعت کے حق میں سنبھال رکھی ہے۔
क्या बात है मेरे आका की। आका फरमाते हैं हर नबी को एक दुआ ऐसी दी जाती है जो खास मकबूल होती है। वैसे तो अंबिया की दुआएं कबूल हैं, मगर हुजूर फरमाते हैं मैंने अपनी उस दुआ को बचा के रखा है अपनी उम्मत की शफाअत के लिए। सुभान अल्लाह। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 4 सवाल सारे सही जवाब। अब 5वां सवाल वो है जिसका ताल्लुक सिलेबस से तो नहीं है, मगर ऑप्शन दिए जाएंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी उम्र में वफात पाई? 3 ऑप्शन हैं, 63, 82 या 84। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी उम्र में वफात पाई? 63, 82 या 84? ये आसान जवाब नहीं है। अब इनकी किस्मत है कि शायद सही जवाब इनकी जबान से अदा हो जाए। 84 साल। अनबिलीवेबल, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। किस फार्मूले से जवाब दिया? ऐसे ही दिया या कुछ पढ़ा था या सोचा? पढ़ा था, मालूमात कुछ मालूमात थी। कमाल है जनाब। मैं समझा आज गलती हो जाएगी, मगर नहीं हुई। अब मुजफ्फराबाद वालों की बारी है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 7, 8 या 6? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के 8 दरवाजे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीम उन दरवाजों से हमें भी बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ तो इस्लामी भाइयों ने कोई गलती नहीं की है। अब बारी यहाँ मौजूद हाजरीन की है। आइए देखते हैं कौन ठीक जवाब देते हैं और इनामात हासिल करते हैं। जी तैयार हैं? बोले इंशाअल्लाह। चले जी। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची, सईदाबाद से। बगदाद शरीफ में। आप गए बगदाद? इंशाल्लाह अभी भाई दुआ कर देंगे तो इंशाल्लाह चले भी जाएंगे। अल्लाह आपको बगदाद की, मदीने की, मक्के की बार बार हाजिरी अता। सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को गुलामी से आज़ाद करवाने वाले सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? मंसूबे ये बर्बाद करते हैं, मस्जिदें बनवा के ये आबाद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। जी हाँ, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। और इनको मुबारक पानियों का मजमुआ तोहफे में दिए। माशाअल्लाह। चले जनाब, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। ये उम्मत के बेड़े उठाते हैं अल्लाह। जनाब दोनों टीमों के 10 नंबर हैं। आइए नाजरीन, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बहुत खूबसूरत सेगमेंट, नाते रसूल मकबूल और अशार सुनने का मौका मिलेगा। सेगमेंट का नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा, मुश्ताक़ तब लज़्ज़त से जनाब सवाल करेंगे हम फैसलाबाद वालों से। मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा, आप उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरी लाइन पढ़ूंगा। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है? रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ऐ दिल ये सुलगना क्या जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है।
اے دل یہ سلگنا کیا. اب یہ بڑی عشق والی بات ہے, ہیں؟ جو چیز سلگتی ہوتی ہے نا اس سے دم گھٹتا ہے, اس سے جو ہے نا وہ سانس میں رکاوٹ آتی ہے. اب یہاں عشق رسول کی بڑی گہری بات ہے کہ دل میں عشق رسول کی اگر جو ہے وہ دم سلگ رہا ہے, دل نبی پاک کی یاد میں سلگ رہا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سلگ رہا ہے, تو کہتے ہیں اے دل اب سلگنا کیا ہے, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرما دیا ہے نا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو بڑا کمال کا شعر ہے کہ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھے, دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھے, گھٹنے لگا ظالم, گھٹنے لگا ظالم, کیا دھونی رمائی ہے. رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. پہلی لائن آپ نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, یہ پل صراط کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ جب تلوار سے زیادہ باریک پل پر, تیز پل پر چلنا پڑے تو ہمارے آقا وہیں تو رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے نا. رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. غم زدہ کیوں ہوں گے؟ ہمارے لیے غم زدہ ہوں گے. آقا کو اپنا کوئی غم نہیں ہے, کیسے شفیق آقا ہیں کہ اپنی امت کے لیے غمگین ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے, جوش رحمت پہ وہاں یہاں ناز گناہ کا دیکھو. کا علمی فیضان یہاں پہ جاری ہے, قرآن و سنت کے پھولوں کی یہ کیاری ہے. جلدی کریں گے. وہاں ناز سے کانپتی پائی طاعت, جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. کچھ قریب ہیں آپ. بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت, جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. کمال کا شعر ہے, بڑی پیاری بات کی اعلیٰ حضرت نے. وہی والی بات ہے, یہ وہی کلام ہے جس میں پہلی لائن میں کعبے کا مکے کا ذکر, دوسری لائن میں مدینے کا ذکر ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جب مکے پاک کوئی اطاعت گزار بھی جاتا ہے نا, متقی پرہیزگار بھی جاتا ہے, تو پھر بھی اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے, کیونکہ مکہ پاک میں ایک ہیبت ہے, ایک جلال ہے. یعنی طاعت بھی جو ہے, اطاعت بھی کانپ رہی ہوتی ہے. مگر مدینے میں جاتے ہیں تو گناہ گار بھی ناز کر رہا ہوتا ہے کہ آقا کے قدموں میں آیا ہوں نا, دامن میں چھپا لیں گے, شفاعت فرمائیں گے, بخشش فرما دیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت, جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. بے نیازی سے وہاں کانپتی اب باری ہے آپ کو اسکرین پر کچھ اشعار دکھائے جائیں گے جس کا آپ نے جواب دینا ہے. جی. جگمگایا ہے
मेरे जनाब दूसरे मिसरे का पहला पहला लफ्ज दरिया, क्या खूबसूरत शेर है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दुनिया वालों से मांगे तो जितना मांगते उसमें थोड़ा सा देते हैं, ज्यादा मांगो थोड़ा देते कि चल इसी से काम चला ले। मगर आका का दरबार कैसा है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, क्या दिया, दरिया बहा दिए हैं। और दुर कहते मोतियों को, दुर बेबहा यानी कीमती मोती भी अता फरमा दिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे करीम से कतरा किसी से मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी से मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर बेबहा दिए। जनाब अब इनकी बारी है। मुजफ्फराबाद वालों को स्क्रीन पर कुछ दिखाया जाएगा जी। बाएं दूसरे का पहला पहला लफ्ज बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह हमार फिरते हैं। बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार यानी राह मार फिरते हैं। अल्लाह कहते हैं देखें, एक होता है दायां रास्ता, नेकी का रास्ता, और बायां रास्ता आपने इशारा किया गुनाहों वाले रास्ते की तरफ। आप फरमाते हैं अगर ईमान बचाना है ना, ईमान की दौलत तुम्हारे पास है तो बाएं रास्ते की तरफ मत चलो, क्योंकि उधर ईमान के डाकू मौजूद हैं, तुम्हारा ईमान छीन सकते हैं। बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। अल्लाह करे आला हज़रत की नसीहतें में समझ आए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब इनकी बारी है। जनाब बताइए स्क्रीन पर, संगे दूसरे का पहला पहला लफ्ज जाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सबर दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए। क्या बात है, क्या बात है। आला हज़रत कहते हैं कि मदीने से वापसी जब होना, अव्वल तो हो ना किसी तरीके से वहीं रह जाएं, लेकिन अगर आ भी जाएं तो सर आ जाए, जिस्म आ जाए, दिल को करार नहीं आता। हमें अल्लाह पाक नबी पाक के दर की हाजिरी की तरफ से सब्र ना दे, हम बेचैन ही रहें, तड़पते रहें, इसी का मजा है। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा ना सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। संगे दरे सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। हाय जनाब फिर दिखाएंगे हम मुजफ्फराबाद वालों को। बताइए, एक दूसरे का पहला जी, रखती एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा, रखती है कितना अल्लाह अकबर बेड़ियां। जनाब अब तर्ज सुनाई जाएगी फैसलाबाद वालों को, और उस तर्ज के जरिए इन्होंने कलाम या नात तक पहुंचना है जी।
खुशा झूमता जा रहा है सफ़ीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस शेर को पहले समझ लें, ये कब लिखा गया था। अमीर अहले सुन्नत पानी के जहाज से मदीने जा रहे थे, हज का सफर था और हरमैन की हाजिरी थी, और आपने ये कलाम उस सफीने में बैठकर लिखा है। तो आप शायर का जब वो कैफियत समझते हैं कि कब लिखा गया, तो अब खुशा यानी खुशी से झूमता हुआ सफीना यानी शिप जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे मुजफ्फराबाद वालों की तर्ज सुनाइए जनाब। जनाब एक बार फिर सुना। एक बार फिर सुना दीजिए। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बड़ी प्यारी मनकबत है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें अब हाजरीन की बारी है, इन्हें भी कोई तर्ज सुनाएं जनाब, देखिए कौन पहुंचते हैं। जी पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। क्या कलाम है, क्या कलाम याद दिला दिया, खूबसूरत कलाम। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएं, अल्लाह की बारगाह में नबी पाक शफात की दरखास्त करेंगे और आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। क्या मेरे आका की शान है। जवाब दुरुस्त दे दिया इन्होंने। सुभान अल्लाह। इनको एक बड़ी प्यारी किताब फैज़ान नमाज, जिसमें मौजूद है जमात के फ़ज़ाइल, खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ने के फ़ज़ाइल, नमाज ना पढ़ने के अज़ाबात, और भी बहुत कुछ नमाज के फ़ज़ाइल के ऊपर, ये इनको तोहफे में दी जा रही है माशाअल्लाह। इसकी अच्छा अब्दुल हबीब भाई, अब एक सवाल है मेरे पास। पहले मैं एक शेर पूछ लूं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, शेर ये है, इसी कलाम का शेर है और वो भी कमाल शेर है। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, हाय हाय हाय, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते। क्या बात है, मेरे आका का दामन कितना बड़ा है कि जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। इस कलाम के एक दो शेर सुना दें, इस कलाम के एक दो मजीद शेर सुना दें। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रो
बिजली गिराते जाएंगे खाक उफ्ता दो बस उनके आने की देर है खाक उफ्ता दो बस उनके आने की देर है खुद वो गिर गिर सजदा में हमको उठाते जाएंगे खुद वो गिर गिर सजदा में हमको उठाते जाएंगे दिल निकल जाने की जा है आह किन आँखों से दिल निकल जाने की जा है आह किन आँखों से हमसे प्यासों के दरिया बहाते जाएंगे हमसे प्यासों के दरिया बहाते जाएंगे खाक हो जाए तो चल कर मगर हम तो रज़ा खाक हो जाए तो चल कर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे क्या बात है, क्या बात है नाज़रीन। कुछ बातें, कुछ कलाम, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो बराह रास्त दिल पर असर करते हैं। किस शान से लिखा मेरे रज़ा ने ये कलाम, ऐसा लगता है कि क़यामत का नक्शा उनके सामने था और क्या खूबसूरत नक्शा खींचा है कि खाक उफ्ता दूं, जो खाक पे पड़े हुए होंगे ना, बस उनके आने ही की देर है, बस आका को आने दें। जैसे नबी पाक आएंगे ना तो खुद सजदे में गिर जाएंगे और हमको उठा देंगे, खुद आंसू बहाएंगे, हमें हंसा देंगे। सुभान अल्लाह, बड़ी उम्मीद है मेरे आका की शफाअत की। क़यामत के दिन नबी पाक ज़रूर शफाअत फरमाएंगे हम गुनाहगारों को, और कोई आसरा भी तो नहीं है, उनकी शफाअत का आसरा है इंशाअल्लाह, वो लेकर जाएंगे हमें जन्नत में इंशाअल्लाह। ये ज़रा में स्कोर बोर्ड दिखाइएगा। जनाब दोनों टीमों के 20-20 नंबर हैं। चलें जनाब। जी सही है साहब, कुछ फरमा रहे आप? जी, हमारे यहाँ इस वक्त हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जो दारुल मदीना अल हिलाल कैंपस में है, वो कुछ एक शेर सुनाना चाह रही हैं। जी हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। चले जनाब, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अजायबात कुरान।
कुरान पाक के खूबसूरत मकामात, कुरान पाक की खूबसूरत बातें, नूरे कुरान से दिलों को मुनव्वर करने वाला सेगमेंट अजायबात कुरान। एक तिलावत होगी, एक आयत सुनाई जाएगी, फिर उसके बारे में हम दोनों टीमों से बारी बारी सवाल करेंगे। गौर से तिलावत कुरान सुनिए। वयौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून। जनाब, वयौम तक़ूमुस्साअ, ये कुरान पाक में कितनी बार आया है और कहां कहां आया है? ये कुरान पाक में 5 मकामात पर आया है। सूरत रूम आयत नंबर 12, 14, 55 और सूरत गाफिर आयत नंबर 46 और सूरत जासिया आयत नंबर 27। क्या बात है, 5 जगह आया। कहां कहां आया? बिल्कुल दुरुस्त बता दिया है। मुजफ्फराबाद वालों की बारी है, तो कुरान पाक की आयत सुनेंगे। वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये जगह कितनी जगह है? ये कुरान पाक में 2 जगह पे आया है। नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 148 और सूरह माइदा की आयत नंबर 48 और वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिल्कुल जवाब, बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब ये बताइएगा कि कुरान पाक में कितने फलों के नाम आए हैं? तादाद भी बताएं, उन फलों के नाम भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में 6 फलों के नाम आए हैं। इंजीर, जैतून, अनार, केला, तर, खजूर और अंगूर। इंजीर, जैतून, अनार, केला, तर, खजूर और अंगूर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में कितने परिंदों के नाम आए हैं? और कुरान पाक में मज़कूर कोई भी 4 परिंदों के नाम भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में 4 परिंदों के नाम आए हैं। बुलबुल, हुदहुद, अबाबील, हुदहुद, टिड्डी, कौवा। अबाबील, हुदहुद, कव्वा और टिड्डी, ये 4 परिंदों के नाम कुरान में आए हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक नूरे कुरान से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया। और अब चलेंगे एक बार फिर हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से। जनाब, अगला सेगमेंट जिसपे मुकम्मल करने हैं कुछ अल्फाज, सेगमेंट का नाम है मुकम्मल कीजिए। जनाब, मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में जितने इशारे लेते जाएंगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। फैसलाबाद वालों को दिखाइए कौन सा लफ्ज है जो मुकम्मल करना है। दीन का इल्मी फैज़ान यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। क्या इसमें नून है? बताइए क्या इसमें नून है? जी जनाब, 2 नून आ गए। रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने, नेमते हिफ्ज़े कुरान पाई हजारों ने। रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने। क्या इसमें बात है? बा। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश बा भी 2 आ गए। क्या इसमें या आता है? जी, या भी आता है। क्या इसमें जा आता है? बताइए क्या जा आता है? जी, जा भी आता है।
جیم آتا ہے، جیم بھی آ گیا، ہا بھی آ گیا، کیا بات ہے. زینب بنت جحش. حضرت زینب بنت جحش، کوئی غلطی نہیں کی، 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. میرا خیال ہے یہ شاید پہلی بار مکمل کیجئے میں ہوا ہے کہ کسی ٹیم نے پورے 5 نمبر اس بار حاصل کیے ہیں. مظفر آباد والوں کی باری ہے. کیا اس میں الف آتا ہے؟ جی الف آتا ہوگا، بتائیے جناب. جی 4 الف آ گئے جناب، کمال ہو گیا، تھوک کے حساب سے الف آ گئے. کیا اس میں لام آتا ہے؟ لام بھی آتا ہے. یا آتا ہے اس میں؟ یا بھی آتا ہے. جیم آتا ہے اس میں؟ جیم بھی آتا ہے. کاف آتا ہے اس میں؟ کاف بھی آ گیا جناب، کیا بات ہے، کوئی غلطی انہوں نے بھی نہیں کی ہے. کچھ علاج ہے مگر کس کا علاج ہے؟ جلدی کیجئے، 5 سیکنڈ رہ گئے. نون آتا ہے اس میں؟ اس میں نون نہیں آتا ہے. حاضرین ناظرین آپ بھی سوچیں یہ کس چیز کے علاج کی بات ہو رہی ہے. جی جلدی کریں. واو آتا ہے؟ واو بھی نہیں آتا ہے. جناب ہاں آتا ہے، ہاں. ہاں بھی نہیں آتا. یہ وہ علاج ہے کہ کسی کا ہو جائے تو وہ خوش ہو جائے گا. اس علاج کے ہوتے ہی بندہ خوش ہو جائے گا، غم دور ہو. جلدی کریں. بعد با بھی نہیں آتا ہے. اچھا جناب اب اور اشارہ دے رہا ہوں. غم زدہ جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اب ذرا غور کر لیں. اب تو میں نے دروازے تک پہنچا دیا. سیکنڈز ختم ہو رہے جناب. میم آتا ہے؟ اب آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، اب آپ نے نام لینا ہے. 25 سیکنڈ ہیں، اب نام لے لیں. 5 آپشنز پورے ہو گئے. اب بھی آپ نام لے لیں گے تو آپ کو 1 نمبر مل جائے گا. غم زدہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کیسا فیل کرتا ہے؟ آزادی کا علاج. آزادی تو کون چاہتا ہے آزادی کا علاج کروانا. چلے جناب اب ہمارے حاضرین میں سے کوئی بتائیں گے؟ حاضرین میں سے کوئی پہنچے ہوں تو بتائیں. اب یہ پتہ نہیں کون سے علاج تک پہنچے. چلے دیکھتے ہیں، پھر ان کا علاج کر دیں گے اگر غلط جواب دیں گے تو. جی اداسی کا علاج. جی اداسی کا علاج، اور یہ رسالہ بھی ہے. غلطی ہو گئی ہے، ایک ٹیم نے 5 نمبر حاصل کیے، ایک نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، مگر اداس مت ہوئیے گا، ابھی مقابلہ بہت باقی ہے اور بہت چانس ملے گا. پھر باری فیصلہ آباد والوں کی ہے. بتائیے جناب. جناب 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. کیا اس میں الف آتا ہے؟ بتائیے کیا الف آتا ہے؟ جناب الف اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں. خیر خواہی اس میں یا آتا ہے؟ جی یا اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں. یا بھی 2 آتے ہیں. ذہنی آزمائش دیکھو
پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے کیا اس میں نون آتا ہے؟ نون بتائیے کیا نون آتا ہے؟ نون بھی دو آتے ہیں. کیا اس میں میم آتا ہے؟ بتائیے کیا میم آتا ہے؟ میم نہیں آتا. جلدی کریں. اس میں را آتا ہے؟ را بھی نہیں آتا ہے. روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے روشنی کیا اس میں لام آتا ہے؟ جی لام آتا ہے. کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے. کیا اس میں دال آتا ہے؟ جی دال آتا ہے. کیا اس میں حا آتا ہے؟ ہاں نہیں آتا ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب یا رسالے کا نام ہے. کیا اس میں واو آتا ہے؟ واو بھی نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. جناب یہ کچھ جیتنے کا نسخہ ہے. جیم آتا ہے؟ جی تا؟ جی تا تو تا جی تا پا تا تا جی تا بھی آ گیا, جیم بھی آ گیا, سین؟ سین بھی آ گیا, خا؟ جی خا بھی آ گیا, ہا؟ ہا بھی آ گیا. دل جیتنے کا نسخہ. دل جیتنے کا نسخہ. صرف 1 نمبر ملے گا. 4 غلطیاں کی ہیں. اب باری پھر ہے مظفر آباد والوں کی. ان کے پاس موقع ہے مقابلے میں واپس آنے کا. بتائیے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے؟ جی کیا اس میں الف آتا ہے؟ جی بتائیے کیا اس میں الف آتا ہے؟ جی 2 الف آ گئے ہیں. جس کیفیت میں آپ ہیں آپ مقابلہ جاری نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کو مقابلے میں رہنا ہے تو ہمت میں رہنا ہے. ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی تو بہت باقی ہے. ہم نے تو 18 نمبر کا فرق کور ہوتے دیکھا ہے. واو ہے اس میں؟ جی واو اس میں نہیں ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے یا آتا ہے اس میں؟ جی یا 2 آتے ہیں. دین کا علمی فیضان یہاں پہ جاری ہے قرآن و سنت کے پھولوں کی یہ کیاری ہے دین کا علمی فیضان یہاں پہ جاری ہے قرآن و سنت کے پھولوں کی یہ کیاری ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا لام آتا ہے اس میں؟ جی لام بھی آتا ہے. زبردست. 2 لام آتے ہیں. نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے نعمت حفظ قرآن پائی. کاف آتا ہے؟ کاف کون سا کاف؟ کعبے والا کاف نہیں آتا. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے جی نون ہے اس میں؟ نون بھی نہیں آتا ہے. یہ بڑی بزرگ خاتون ہیں جن کا یہ نام ہے. یہ بڑی بزرگ خاتون ہیں.
इनसे सवेरा है, मुफ्तियाने दीन ना हो तो अंधेरा है, अंधेरा। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। हाँ इसमें जी हाँ नहीं आता, हाँ नहीं आता। धूम दुनिया भर में इस चैनल ने मचाई है, इनके नाम में किसी की वालदा यानी करके इनके नाम के साथ आता है। मीम आता है? जी मीम आता है, ख्वा आता है, खा भी आ गया, अलीफ आता है। अलिफ तो आप पहले ही पूछ चुके हैं। मीम पे खड़ा जबर हमारी मजलिस को लगाना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सीन जी सीन आ गया जनाब। उम्मुल खैर सलमा, अब जनाब 1 नंबर इनको मिला है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है और ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ और थोड़ा सा फर्क दोनों टीमों में जरूर हो गया है, मगर अभी बहुत मुकाबला बाकी है। दोनों टीमों को हिम्मत में रहने की जरूरत है। हमने तो देखा है कि बहुत बड़ा फर्क जो है वो आखिरी सेगमेंट में खत्म हो जाता है। जनाब अब चलेंगे एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जग। नादरीन अब बहुत खूबसूरत सेगमेंट, चेहरों पे मुस्कुराहटें लाने वाला सेगमेंट जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। जनाब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, यानी कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह में थी। जी जनाब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इमाम हसन से क्या रिश्ता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नवासे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अवाम जो कि सैयदना अस्मा बिनत ज़ानिब के बेटे थे, अस्मा बिनत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के, जी अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे थे। तो रिश्ता क्या बना? रिश्ता इमाम हसन की बेटी उम्मुल हसन ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के निकाह में थी, तो इमाम हसन की बेटी के दामाद के नाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। दोबारा सोच लें। इमाम हसन के दामाद के नाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो दामाद थे उनके नाना हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब अब आपसे आपका सवाल करेंगे। आपके परदादा के पोते की अहलिया की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? जरा गौर से देख लें नाजरीन, आप भी देखें आप पहुंचते नहीं पहुंचते। आपके परदादा के पोते की अहलिया की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? बहन। जी जनाब ये आपकी बहन भी हैं और और रिश्ता भी हो सकता है। चचाजाद बहन। चचाजाद बहन भी हो सकती है और आपकी सगी बहन भी हो सकती है। घर का रिश्ता इतना दूर से घूमकर पूछा गया, जवाब दुरुस्त दे दिया। अच्छा आपके खालू की सास के बेटे की अहलिया की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? जनाब गौर से देख लें। आपके खालू की सास के बेटे की अहलिया की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? बाप रे बाप। मामूजाद बहन। क्या बात है, मामू की बेटी मामूजाद बहन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रिश्तों की पहचान भी रखनी है, रिश्तों की कदर भी करनी है और उनका एहसास भी करना है। सिला रहमी के बड़े फजाइल हैं। रिवायतों में मजमून मिलता है जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र में ज्यादती हो, वो उसकी उम्र में बरकत हो, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, सदका और खैरात करे। ये बड़े अच्छे काम है, अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह दोनों टीमों ने दुरुस्त जवाब दे दिया है माशाल्लाह। मगर हम भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। हम इजाजत देंगे तो पूछेंगे ना। नहीं आप इजाजत ना भी दें तो आपकी शफकतें हैं हमारे साथ। अच्छा जनाब पूछिए। और आज हम
आपसे एक नहीं दो सवाल करेंगे। इंज ना करो दसी बापू। पहला सवाल, आपके बेटे की बहन के भाई की बेटी की दादी के ससुर से आपका क्या ताल्लुक है? ये तो आप बोल के निकल गए, उनको तो लिखा हुआ भी मिलता है। मैं अब तक जो समझाऊं, पकड़ने की कोशिश की है, मेरे वालिद साहब हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। एक और सवाल आपसे करना है और वो ये है, माजिन के अब्बू की अहलिया के बेटे की बेटी की फुप्पो आपकी क्या लगी? शुक्र बापू रुक गया। पता नहीं पूरी रेलगाड़ी बनाते हो, पहले घर में लाते हो फिर बाहर निकालते हो। गालिबन मेरी बहन के बारे में आप पूछ रहे हैं। आप पहले माजिन को नहीं तो पूछे। माजिन मेरे पोते के लिए सवाल किया ना आपने। माजिन यहाँ पर भी। अच्छा यहाँ भी है ना, ये वाले माजिन से तो फिर। लेकिन मैंने आपके माजिन का ही पूछा है। सही, बहन मेरी हमशीरा होंगी ना, मेरी फुप्पो। नहीं, आप बताएंगे। मेरी, अच्छा दोबारा बताऊं? दोबारा बता। माजिन के अब्बू की अहलिया के बेटे की बेटी की फुप्पो आपकी क्या लगी? अच्छा, मेरी बेटी लगी। अच्छा, मेरी साहबजादी हुई। चले जनाब, जवाब दुरुस्त। बहुत मुश्किल सवाल करते हैं, इतना मुश्किल तो मैं भी नहीं करता उनसे, आप इतना मुश्किल मुझसे करते हैं। चले जनाब, अब वक्त हुआ है, दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएंगे, नेक अमाल का जायजा भी होगा और फिर इंशाअल्लाह हमें नात ख़्वां प्यारी प्यारी नाते भी सुनाएंगे। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजिरीन, नेक अमाल के रिसालों को निकाल लीजिए। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिए। अच्छी नियतों के साथ नेक अमाल का जायज़ा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी नियतें की, पाँचों नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से क़ब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरे मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरे इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा व तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक व चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सबको नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے جناب اب نعت شریف کی طرف چلتے ہیں. جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا. تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں کے سائے میں، سوتے ہیں کے سائے میں. کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا. تیری گلی سے جائے کیوں. پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو. چین کہو گوائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا. تیری
مزہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں یا تو یوں ہی تڑپ کے جان یا وہی دام سے چھڑا یا تو یوں ہی تڑپ کے جان یا وہی دام سے چھڑا منت غیر کیوں اٹھائے منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب کون روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب کون روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہ میرے کریم پہ لقمائے در کھلائے کیوں میرے کریم پہ لقمائے در کھلائے کیوں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم بگڑ نہ جائے ہے تو رضا میرا ستم جرم بگڑ نہ جائے کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی
माशा। हमारे पास एक प्रोमो है कि अगले प्रोग्राम्स, क्योंकि कल एक और सिलसिला इंशाल्लाह कराची में आखिरी सिलसिला होगा स्टूडियो में, अहलियान कराची कल भी तशरीफ लाएं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ट्रैवल पे रवाना हो रहे हैं। तो अब ये प्रोग्राम कैसे कैसे कहाँ कहाँ होंगे, आइए देखते हैं। ज़हनी आजमाइश एक ऐसा कोई प्रोग्राम है जो पाकिस्तान भर के तकरीबन 23 शहरों से चैनल्स में दाखिल हो जाएगा, जहां 16 में से 8 टीमें सेलेक्ट हो जाएंगी और फिर 8 टीमों के दरमियान क्वार्टर फाइनल, और फिर उन 8 में से 4 के दरमियान सेमीफाइनल, और फिर होगा फाइनल। इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हम पाकिस्तान के एक तरह से टूर पे जा रहे हैं। हमारा ये क्वार्टर फाइनल का जो सिलसिला है ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने जा रहा है। इंशाल्लाह 20 दिसंबर को पहला क्वार्टर फाइनल सिंध के शहर टंडो अलायार में होगा। 22 दिसंबर को दूसरा क्वार्टर फाइनल पंजाब के शहर भावलपुर में होगा। 24 दिसंबर को तीसरा क्वार्टर फाइनल इंशाल्लाह टोबा दारुस्सलाम में होगा। चौथा क्वार्टर फाइनल वो 26 दिसंबर को सियाल मोड़ जो सरगोदा के करीब है वहां पर होगा। 27 दिसंबर को पहला सेमीफाइनल मंडी बाउद्दीन में होगा। 29 दिसंबर को दूसरा सेमीफाइनल कश्मीर की वादियों में नकियाल में होगा। और फाइनल इंशाल्लाह 31 दिसंबर की रात जो न्यू ईयर नाइट कहलाती है, इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में एक अजीम और शान ज़हनी आजमाइश का फाइनल होगा। तो आप सबसे गुजारिश है अच्छी नीयतों के साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहें। जी जनाब, इंशाल्लाह इस तरह ज़हनी आजमाइश मुख्तलिफ शहरों में सफ़र करता करता इस्लामाबाद 31 दिसंबर की नाइट, न्यू ईयर नाइट जो है उसमें अजीब और शान ज़हनी आजमाइश का सिलसिला भी होगा और उसमें मदनी मुज़ाकरा भी होगा। इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत भी जलवा फरमा होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की दुआओं के साथ हम 2024 के सिलसिले में दाखिल होंगे। यकीनन अमीर अहले सुन्नत बजरिया वीडियो शरीक होंगे, मगर दुनिया भर के नाजरीन ज़रूर वो रात हमारे साथ आपने गुजारनी है। जनाब अब चलते हैं, एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। जी 34 नंबर है फैसलाबाद, 29 नंबर है मुजफ्फराबाद वालों के। और अब जनाब अगला सेगमेंट आपका है। चलें इससे पहले कि वो सेगमेंट करें, हम उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग करते हैं। जी जनाब आज जो हमारा उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग सिलसिला है वो पश्तो ज़बान में है। तो हमारे पख्तून इस्लामी भाइयों की दिलजोई की नीयत से इंशाअल्लाह ज़वजल खाने पीने की सुन्नतें और आदाब बयान करने की कोशिश करूँगा। खुगो खुगो इस्लामी रोड़ों और द मदनी चैनल का तुन को ज़दना ननी सेगमेंट द उम्मत पे रंग ज़हनी आजमाइश पे संग के ज़मों खोग आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हगा उम्मतियान चेदा दुनिया पे कौम गुट और पे कौम मुल्क के उसेगी पश्तो जबा वाई या ओपेगी या पे पोहेगी द हगोए द जड़ा खुशहाला वलो प नियत पश्तो जबा के द तुआम सुन्नतोना औ अदाब बयान कवलो कोशिश कवमा पदे दौरान कसे गलती ओशी नो माफी राता कवाई तो आम द अल्लाह पाक देर खोग नेमत दे कि चेरता तो आम द सुन्नतू मुताबिक उखरो नो खेटे मड़ा वलो सरा सरा बसवाब हम हासिलेगी नमोंगा तपा कारेदी चेदा सुन्नतों मुताबिक तो आम ख्वार लो आदत जोड़कू द तो आम वल लग सुन्नतुना औ अदब बबरई अव्वल रोटी खाड़ा लो नमक के अखपल लासोना तर मरोन दोनों पोरे ओमेन जई। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत दे चे अल्लाह पाक द टोलो न आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे सोक दा ख्वा खई चे अल्लाह पाक दे पदा कोर के बरकत जियाद कड़ी नो दता पा कारे दी नो दता पा कार दी चे कला रोटई हादिरा शई बयादे औ दस कवि औचे कला रोटई ना पासी नो बयादे हम औदस कवि। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला ने लिखी चेदा तो आम बल औदस न मुराद दलास और खुले सफाई कवल दी चे कला हम रोटई खोरई नो गसखपा बसमला वे औ खे खपा ब ओ दरा वे यबा जख केने रोटई न मख के पेजार ओबासी रोटी न मख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओवई के चेरता रोटी न मख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही रशी औ बया दरता यादा शीन बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु ओवई कलाचे रोटी न मख के दा दुआ ओवई खाने नो दगे रोटी के का जहर हम मिला वो नो इंशाअल्लाह असर बनकवी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या कय्यूम रोटई पाखी लास खुरई रोटई अखपल मख के खुरई
रोटई के दसा किस्म हम ऐब मा लगवई मिसाल लका दमा वयई वय चे रोटई मज़ेदारा ना वया कचा वा वगैरह जका चे पर रोटी के ऐब लगावल खिलाफ सुन्नत दे औ का जड़ा देवी खुबयाए औ अखरा उखरा के नबई कनई बया ये परीदा अल्लाह पाक दे मोंग टोलो तपदे सुन्नतो बांधे अमल कवलो तौफीक रा नसीब कड़ी। अब हमारा मदनी मकसद क्या है? मत दखपल जान औ द टोले दुनिया द खलकू इस्लाह कोशिश कवल दी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जनाब अब पश्तो ज़बान में इंशाअल्लाह मिलकर नात पढ़ेंगे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बस देदार कले प्रेग दमदीने जाना लाज़मा। इसका माना बता देता हूँ। बस अब मैं अपना घर बार छोड़कर प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी देने जा रहा हूँ। कहते ना मैं मदीने चला, ये पश्तो ज़बान में समझ ले इस तरह का कलाम है। जी बस देदार कोर के नए प्रेग दमज़मा बस देदार कोर के नए प्रेग दमज़मा दमदीने जाना लाज़मा दमदीने जाना लाज़मा नसीबा नूर दरता कतल नशमा नसीबा नूर दरता कतल नशमा ज़दा हिजरान ताकत लरले नशा ज़दा हिजरान ताकत लरले नशा सड़ तरसो बसबरा व मज़मा सड़ गया तरसो बसबरा व मज़मा दमदीने जाना लाज़मा दमदीने जाना लाज़मा ज़फ़ल अल्लाह तआला मतयमा ज़फ़ल अल्लाह तआला मतयमा कतयमा पलअमल कतयमा ज़ंदा गोना न पाका वो मज़मा सानदा गोना न पाका वो मज़मा दमदीने जाना लाज़मा दमदीने जाना लाज़मा पहागा खौरा लोड़े दलवाड़ा मा खौरा लोड़े दलवाड़ा मड़ा दरबार के जाड़े दलवाड़ा मा हवा दरबार के जाड़े दलवाड़ा मा अल्लाह मीन लाटा वा मज़मा अल्लाह मीन लाटा वा मज़मा दमदीने जाना लाज़मा दमदीने जाना लाज़मा मोहम्मद ज़मान हलता बलकार नकावा मोहम्मद ज़मान हलता बलकार नकावा ज़मीने बल रोज़गार नकावा बगैर ज़मीने बल रोज़गार नकावा तैयार ना तू नबाली का मज़मा तैयार ना तू नबाली का मज़मा दमदीने जाना लाज़मा दमदीने जाना लाज़मा बस देता कोल करे प्रेग दमज़मा बस देता कोल करे प्रेग दमज़मा दमदीने जाना लाज़मा वो दिन आएगा कि इंशाअल्लाह हम भी मदीने जाएंगे और ये कहेंगे कि फिर करम हो गया मैं मदीने चला। इंशाअल्लाह मदनी मुन्नों ने हमें कुछ ज़हनी आजमाइश के हवाले से पैकेज भेजा है, कोई वीडियो भेजी है वो दिखाते हैं। ज़हनी आजमाइश सीजन 50 सेगमेंट है सफर है मगर आखिर
पहली बारी है मोहम्मद माज रजा की। इनसे सवाल नंबर 1 है, कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरह का नाम क्या है? कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरह का नाम सूरह कौसर है। कुल से शुरू होने वाली कितनी सूरह हैं? कुल से शुरू होने वाली 5 सूरह है। कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरह सूरह बकरा है। जी जनाब, इन्होंने 3 के 3 जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बारी है मोहम्मद उमैर रजा। इनसे सवाल नंबर 1, हुर्फ अलकला कितने हैं? हुर्फ अलकला 5 है। नंबर 2, सबसे पहले नबी का नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नमाज कब फर्ज हुई? इलाही नबूवत के 92वें साल। जी जनाब, इन्होंने भी 3 के 3 जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। तीसरी बारी है मोहम्मद जैन रजा की। इनसे सवाल नंबर 1 है, गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं? गुस्ल में 3 बातें फर्ज है। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम किसने लिखा है? इमाम अहमद अलैहि रहमान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए। जी जनाब, इन्होंने भी 3 जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। चले जनाब, माशाअल्लाह, दुनिया के कई मुल्कों के घरों में ज़हनी आजमाइश जारी है और यही हमारा, क्योंकि हम तो कुछ सिलसिलों के बाद चले जाएंगे, ये प्रोग्राम फिर अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो होगा, लेकिन आप इसको सुनते रहिए, देखते रहिए और इन बच्चों के अंदर अल्लाह करे ये शौक़ पैदा हो, हमारे बच्चे भी उलमा बने, दीनदार बने, इल्म दीन सीखने वाले बने। आइए नाज़रीन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ये मुक़द्दस मकाम कौन सा है। जनाब, मुक़द्दस मकामात दोनों टीमों को दिखाए जाएंगे, निहायत तवज्जो से देखना है क्योंकि इन्हीं के अंदर 5-5 नंबर भी हासिल किए जा सकते हैं। दिखाइए जनाब। नबी मोहम्मद मस्जिद चीचनिया, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सिरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद शरीफ, मज़ार मुबारक हज़रत पीर गायब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मनोड़ा कराची, हज़रत शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह मराकश, मज़ार मुबारक हज़रत यूशा बिन नून रहमत अलैहि सलाम, मज़ार मुबारक सैयदना अबू अयूब अंसारी इस्तांबुल, मज़ार मुबारक हज़रत शराहबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत यूसुफ शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत सैयद मोहम्मद शाह दूल्हा शाह सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाख रहमतुल्लाह ताला अलैह मराकश, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मस्जिद जिन मक्का मुकर्रमा, मज़ार मुबारक अल्लामा कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाहु अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला, मज़ार मुबारक से शाह तौरवला क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत अबुल अब्बास सिब्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह मराकश, मज़ार मुबारक मुफ्ती वक़ारुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, वो जगह जहाँ जन्नती मेंढा उतारा गया, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाब, मज़ार मुबारक शेख सखी सुल्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह मंगोपीर, मस्जिद जुमा मदीना मुनव्वरा, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक सैयद मिस्री शाह गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह डिफेंस कराची, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक सैयद ग़ुलाम नबी शाह अल मारूफ समंदरी बाबा, मज़ार मुबारक हज़रत सुफियान बिन उयैना, मज़ार मुबारक हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब कुआं, मज़ार मुबारक इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए विलादत, अल्लाह, सैयदना यूसुफ बिन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह मराकश, हज़रत मौलाई इदरीस रहमतुल्लाह अलैह मराकश, मज़ार मुबारक हज़रत उज़ैर, मज़ार मुबारक इमाम जलालुद्दीन सियूती, मज़ार मुबारक हज़रत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। दिन गुजरते जा रहे हैं, हमारी मजलिस लगता है इसको और मुश्किल करती जा रही है। चले जनाब, अब इतने सारे मज़ारात और इतने सारे मकामात देखकर कैसे पहचानेंगे, ये भी एक ज़हनी आजमाइश है। चले जनाब, फैसलाबाद वालों की बारी है, बताइए कौन सी जगह इन्होंने पहचाननी है। ये फूल शायद याद रह गए हों, कोई मज़ार याद रह गया हो, जल्दबाजी मत कीजिएगा, अगर गलत जवाब देंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा।
जी 7 नंबर खोलिए जनाब। जनाब फूल दूसरे आ गए हैं। मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। क्या ये कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह? अगर जवाब दुरुस्त है तो 4 नंबर मिलेंगे, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बहुत अजीम हस्ती और अल्हम्दुलिल्लाह किबला अमीर अहले सुन्नत ने इनकी सोहबत भी पाई और इनका बड़ा जिक्र खैर अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी हम सुनते रहे। 4 नंबर हासिल किए फैसलाबाद वालों ने। अब बारी मुजफ्फराबाद वालों की है। एक गुंबद कुछ याद दिला रहा है, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा। पाँच नंबर कौन? 5 नंबर जरा खोलिए जनाब। कुछ याद तो आ रहा है। धूम दुनिया भर में इस चैनल ने मचाई है, लोगों ने ईमान की इससे दौलत पाई है। धूम दुनिया भर में इस चैनल ने मचाई। जल्दी करें। 2 नंबर खोल। 2 नंबर भी खोल दे जनाब। ईमान की इससे दौलत पाई है, की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से। मज़ार मुबारक मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। नहीं, ये तो नहीं है मज़ार मुबारक। चलिए जनाब, हमारे इस्लाम पे पहुंच गए। ये तो कमाल है, अगर कराची वाले 2 इशारों में ये भी पहुंच गए हैं। आपका तो कुछ जाता नहीं ना, कौन सा नंबर कटेंगे। चलें देखें कौन जवाब देता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सखी सुल्तान बाबू। सखी सुल्तान। सखी सुल्तान। सखी सुल्तान। अच्छा देखें जनाब, ये किसका मज़ार है बताइए जनाब। जी सकी सुल्तान शाह बाबा। मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे तस्वीरों को देखकर टीमें कैसे पहचानेंगी, ये तो हमारे हाजरीन याद रखते हैं। मंगोपीर बाबा है माशाल्लाह, इन्हें तोहफा पेश करें। अब बारी फिर फैसलाबाद वालों की है। दिखाइए जनाब। जी सिर्फ दरख्त दिखाया है और थोड़ा सा आसमान दिखाया है। अल्लाह की रहमत से उजड़े घर बसाते हैं, बसाते हैं। 6 नंबर खोल दे। 6 नंबर बताइए जनाब। अब्दुल्ला शाह गाजी। क्या ये शहनशाह कराची सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है? बताइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। 4 नंबर फिर हासिल किए फैसलाबाद वालों ने। अब फिर बारी मुजफ्फराबाद वालों की है जनाब। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। दीन का इल्मी फैज़ान यहाँ। मज़ार मुबारक मिस्री शाह बाबा। अल्लाह अकबर। कोई इन्होंने मदद नहीं ली है। अगर सही जवाब होंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। हजरत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कोई नंबर नहीं मिला है नादरीन। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब आखिरी सेगमेंट है जिसमें फैसला हो जाएगा फैसलाबाद या मुजफ्फराबाद। इसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जोश के साथ मगर होश से। अब जनाब 5 सवाल हैं, 5 अशार हैं। पहले फैसलाबाद वाले बेल बजाएंगे। याद रहे, बेल बजाकर सही जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। गलत बेल बजाई, जवाब ना दे सके, 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जनाब मुजफ्फराबाद वाले, बहुत तकरीबन 13-14 नंबर का फर्क है। चाहे तो इस सेगमेंट में हासिल कर सकते हैं, मगर जोश के साथ होश चाहिए। सवाल है खाना काबा जब आसमान। जनाब बेल बजाई फैसलाबाद वालों ने। गलती पर 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि खाना काबा जब आसमान से नाज़िल हुआ तो ये किस चीज़ से बना हुआ था? इसका जवाब ये है कि खाना काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा और ये खोखली यकूत का बना हुआ था। मैंने पहले ही कहा था कि जोश भी चाहिए,
اور ساتھ ہوش بھی چاہیے. آپ کے پہلے ہی 13 نمبر آپ آگے ہیں. غلطی کر کے اپنے نمبر مائنس نہ کروائیں. تسلی سے سوال سنیں مگر آپ کا سوال اور جواب بالکل درست ہے. اب باری شیر کی ہے. مومن کو پھر بیل بجائی فیصل آباد والوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر، دل پر ہے کندہ نام محمد. دل پر ہے کندہ نام محمد. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال کی باری ہے. بکرے کی پھر بیل بجائی فیصل آباد والوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ بکرے کی اوجڑی اور مرغی کے پنجے کھانا کیسا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب سوال یہ ہے کہ اوجڑی چاہے بکرے کی ہو یا کسی بھی اور جانور کی ہو تو اس کو کھانا حرام ہے. ہاں مرغی کے پنجے جو کہ غریبوں کے لیے پائے ہوتے ہیں ان کو کھانا جائز ہے، لیکن کھانے سے پہلے اگر چونے سے اچھی طرح دھو لیا جائے تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی طرح دھلنے کے بعد اب چھلکا لگے رہنے میں حرج نہیں ہے. یہ مچھلی کے جو مرغی کے پنجے ہوتے ہیں یہ غریبوں کے پائے کہلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. مکروہ تحریمی ہے، انہوں نے حرام کہا ہے لیکن مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہے. تو جواب ان کا چونکہ تفصیل کے ساتھ تھا تو ہم درست مان رہے ہیں. اب جناب شیر کی باری ہے. ہماری اللہ اکبر صرف ہماری سنا ہے، آپ کیسے بتائیں گے؟ جی ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. جواب درست دے دیا. پھر سوال کی باری ہے. کتے کے پھر بیل فیصل آباد والوں نے بجائی ہے. سوال یہ ہے کہ کتے کے تھوک کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ کتے کا تھوک ناپاک. کتے کا تھوک ناپاک ہے. جواب درست دے دیا ہے. بیل تو بجائیں. بیل بج رہی نہیں بج رہی؟ ہاں بج رہی ہے لیکن اس وقت شاید دیر ہو جاتی ہے. اب باری شیر کی ہے. ہو گئی اب بیل بجائی ہے. جناب مظفر آباد والوں نے لفظ ہو گئی صرف سنا ہے. کیسے شیر پورا کریں گے؟ پہلے مصرے کا پہلا لفظ ہے. ہو گئی تحقیق عید آب تیغ سے اپنے روزے کھولتے ہیں سائمان اہل بیت. اپنے روزے کھولتے ہیں سائمان اہل بیت. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال کی باری ہے. کیا نصیب میں پھر بیل بجائی فیصل آباد والوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کیا نصیب میں لکھا بھی محنت سے ملتا ہے؟ جی جواب کیا ہے؟ جی جواب یہ ہے کہ نصیب کا لکھا ہی ملتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی پھلدار درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور یہ تمنا کرے کہ پھل خود ہی ٹوٹ کر میرے منہ میں چلا جائے تو ایسا نہیں ہوتا. حرکت میں برکت ہے. جواب درست دے دیا ہے. شیر کی باری ہے. خدا کے جناب بیل بجائی ہے. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. نہیں جناب. خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو، کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا. آخری سوال. کیا چکور جناب بیل پھر فیصل آباد والوں نے بجائی ہے؟ کیا چکور ایک حلال پرندہ ہے؟ جی ہاں چکور ایک چکور حلال پرندہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب طرز سنائی جائے گی. آخری سوال ہے. طرز سنیں گے اور طرز پہچانیں گے. دوبارہ سنائیے. کوئی بھی بیل نہیں بجائے گا تو نمبر مجھے مل جائیں گے. جناب بیل بجائی ہے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. جی جناب یہ بھی طرز میں یہ بھی شعر آ سکتا ہے. میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے مگر ایک اچھے خاصے فرق سے. آج فیصل آباد والوں نے اپنی سیٹ پکی کی ہے جناب کوارٹر فائنل کے لیے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. اچھی کوشش کی ہمارے مظفر آباد والوں نے مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اگلی بار اور مضبوط تیاری کر کے آپ نے آنا ہے اور نکیال میں ہونے والے سیمی فائنل میں آپ نے شرکت بھی کرنی ہے. ہم آپ کے قریب آ رہے ہیں تو انشاءاللہ کشمیر کے لوگوں نے بھی سیمی فائنل میں ہمارے پاس آنا ہے. ناظرین اب آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کی رائے کیا تھی ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں.
میں 33% مظفر آباد, 66% فیصل آباد, اور ماشاءاللہ غلمان کو ہم آج کی بیسٹ پرفارمنس کا, ویسے تو ہر اسلام میں ان کا کمال تھا, غلمان کو ماشاءاللہ تحفہ دیا جا رہا ہے. اب ناظرین آئیے دکھاتے ہیں کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے. کتابوں سے دوستی علم کے خزانے کی چابی ہے. جو یہ خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی معلومات میں کرتا ہے اضافہ, مگر جس کے پاس ہو اچھی معلومات وہ مقابلے کا بنتا ہے سکندر. ایسا ہی ایک مقابلہ جس کی گونج اب ہو رہی ہے جگہ جگہ, وہ پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 15, جس کا ہو رہا ہے پری کوارٹر فائنل, جس میں ہوں گی کراچی مدنی اور شیخوپورہ کی ٹیمز آمنے سامنے. 19 دسمبر 2023 بروز منگل رات 8:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. جناب کراچی کی ایک ٹیم تو کل لاہور سے 1 نمبر سے پیچھے رہ گئی تھی, اب آخری موقع ہے کراچی کی دوسری ٹیم کے پاس. دیکھنا یہ ہے کراچی والے اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے یا کل ان کا سفر ختم ہو جائے گا. تو اہلیان کراچی ضرور کل اسٹوڈیو میں آئیں اور دیکھیں شیخوپورہ اور کراچی کے درمیان مقابلہ. جناب اب موجود یہ ہمارے جو ٹیم ہے ماشاءاللہ مظفر آباد کی, ان کو تحفہ دیا جائے گا 1900 روپے کا مدنی چیک بھی ہے دونوں ٹیموں کے لیے ماشاءاللہ, تینوں اسلامی بھائیوں کے لیے ماشاءاللہ. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے شمالیے پھر جگمگایا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمالیے پھر جگمگایا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.